Hello all dear students of class 8. I am Mrs. Nishad Kazi, your science teacher. Today we will be starting a new chapter, that is chapter number 4 of our science textbook, Metals and Non-Metals. So before starting this chapter, first let us introduce what are elements. So elements are substances that are made up of one kind of atom. मतलब एक ही टाइप के एटम से बने हुए. दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस. देयर आर 118 known metal elements. See this, you can see they are made up of only one type of atom. एक ही टाइप ऑफ एटम से वो बने होते हैं. Now how are they? How do they occur? They mostly occur in the earth's crust. Here is a pie chart showing percentage how they occur in the earth's crust. How are they extracted? Usually they are extracted by mining. Only gold, silver are unreactive. They are in free state. They can be classified. Elements can be either metals, non-metals और metalloid, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होगी, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी. Now we will first start discussing properties. So properties में हम आज पहले discuss करेंगे physical properties, in which we will discuss only properties related to length, mass, temperature, solubility, how does it feel, how the sound is produced when we hit it, and so on. हम कोई chemical process इसमें describe नहीं करेंगे. So first property of metal is, metal are usually hard, opaque, shiny, and they have good electrical conductivity. There are total 88 metals, known metals present. So first property is luster. Metals are lustrous. Lustrous का मतलब होता है natural shine. उनमें एक natural shine होती है. Secondly, they are malleable. Malleable का मतलब होता है they can be beaten into thin sheets. आप उनकी thin sheets बनाते हो, like gold foil, एलुमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल या शीट्स जो बनती है मेटल की. दे आर डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब होता है आप उनकी वायर्स बना सकते हो. दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड ज्वेलरी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इसीलिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके बेस जो होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं. बेस, ना कि हैंडल्स. हैंडल्स तो गर्म हो जाएंगे, हैंडल्स नहीं बने होते, बेस बने होते उसके. दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स. जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स होती है उसमें मेटल्स की वायर यूज़ होती है, मोस्टली एल्यूमिनियम एंड कॉपर. दे आर हार्ड. जनरली दे आर हार्ड, बट देर आर ऑलवेज एक्सेप्शन. जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, ये हार्ड नहीं होते हैं. दे कैन बी इजीली कट विथ नाइफ. Most of the metals are very hard. They are sonorous. Sonorous का मतलब होता है आवाज़, ringing sound produce करना. आप उसे किसी चीज़ से hit करोगे, they will produce ringing sound. That is why they are used for making musical instruments and bells. Next property is electrical conductivity. They are very good conductor of both heat and electricity. मेटल्स के इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वायर्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं. दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. मतलब उन्हें मेल्ट होने में बहुत आपको हीट करना पड़ेगा. इसीलिए जब भी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे आपको एक्सेसिवली हीट करना है, मेटल्स को यूज़ किया जाता है. दे हैव हाई डेंसिटी. दैट मीन्स कि द वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज़ हाई. देर आर ऑल्सो सम एक्सेप्शंस टू इट, लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड सीसियम. Then the next property is mostly they are solid in their state is solid, but it can also occur in liquid state, like mercury, which is a liquid. Then gallium and cesium is also there. Now after metals, let us know what are non-metals. So non-metals तो वो चीज़ होती है जिसमें metallic property नहीं होती है. कैसे हम इसे डिस्क्राइब करेंगे? मतलब जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने मेटल्स के लिए डिस्क्राइब की है, लाइक सॉलिड स्टेट, लस्टर, सोनोरिटी, मैलिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होती है. उसे कहते हैं नॉन मेटल्स. ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं नॉन मेटल्स. आप उसे डिफाइन कर सकते हो, केमिकल्स दैट फॉर्म
chemical elements that form negative ions and have acidic oxides and generally are poor conductor of heat and electricity are called non-metals. हम इन्हें इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, नॉन मेटल्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. सो लेट अस नो द पीरियोडिक टेबल. अब ये है पीरियोडिक टेबल जिसमें यू कैन सी ऑल द नॉन मेटल्स विद देयर एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर के साथ में इन्हें प्लेस किया है यहाँ पे. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स में यू शुड फर्स्ट नो कि देयर आर टोटल 17 एलिमेंट्स दैट आर क्लासिफाइड एज नॉन मेटल्स based on their properties. Let us study the properties. First property is usually they do not have luster, but exception is diamond. Diamond has luster and shine both. They are dull like sulfur. Then non-metals are brittle. Brittle का मतलब होता है कि if they are beaten or if they fall down, then they will break into smaller pieces. वो टूट जाएंगे पटकने पे या गिरने पे. Then we have another property, conduction of heat. They are very poor conductor of heat. इस वजह से जो कुकिंग यूटेंसिल के हैंडल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स के बनते हैं, क्योंकि वो हीट को पास नहीं करते तो वो गर्म नहीं होंगे, आप इजीली उन्हें होल्ड कर सकते हो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज they don't conduct electricity. There is an exception, graphite, which is a good conductor of electricity. Others are poor conductor of electricity. दैट इज़ वाई वायर की कवरिंग उससे बनाई जाती है, बाहर की कवरिंग. देन जनरली दे आर सॉफ्ट. हर चीज़ में यू विल सी देर इज़ एक्सेप्शन रिटर्न. एक्सेप्शन मतलब यूजुअली ऐसा होता है, बट देर इज़ एक्सेप्शन ऑफ गोल्ड डायमंड दैट इज़ नॉट सॉफ्ट, दैट इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी. दे आर नॉन सोनोरस. कोई भी रिंगिंग साउंड वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं. दे हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. एक्सेप्शन इज डायमंड. डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता है, बाकी के जो होते हैं दे विल मेल्ट ऑन जस्ट ऑन हीटिंग. मेटल्स हैव लो डेंसिटी. मेटल्स नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी. हमने मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी वेयर एज नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी. At last, I have prepared this chart of differences between metals and non-metals based on all the properties like luster, malleability, ductility. You can go through it and you will revise it.